तो जनाब सबसे पहले हाँ, हम चलते हैं अदब फेस्टिवल पे उस सेशन की तरफ जिसका उन्वान है टेलीविज़न देन एंड नाउ। और इस सेशन के अंदर जो पैनलिस्ट हैं उनमें पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के नामी गिरामी चेहरे मौजूद हैं। इनमें मौजूद हैं अतीका ओडो, समीना अहमद, एहतशामुद्दीन और असफर रहमान। और इनके साथ बात की जाएगी कि आज का टेलीविज़न और माजी का टेलीविज़न और हाल का टेलीविज़न और मुस्तकबिल का टेलीविज़न पाकिस्तान का क्या क्या इसमें तब्दीलियाँ आई हैं और आ सकती हैं, और क्या खोया और क्या पाया। चलिए चल के नजर डालते हैं। Thank you so much for joining us in this session. I'm Neena Kashif and I'm truly humbled to be moderating this panel discussion at the Adab Festival. सबसे पहले तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे गेस्ट स्पीकर्स का जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के आज यहाँ पर आए। It's an honor to be sharing the stage with such inspiring stars from my industry. So I would like to introduce my panel in order of seniority and ladies first. सबसे पहले, we have with us everyone's favorite, Baby Baji, the legendary Sameena Ahmad. Veteran actor, producer, and a true marvel herself, Sameena Ahmad is one of the most dignified names in the Pakistani entertainment industry. For over 50 years, she has been contributing to the Pakistani media in various roles. Her influence is beyond measure and her cuteness is beyond description. So that's Sameena Ahmad for you. Then we have our wonderful Atika Odo, who's an actor, producer, entrepreneur, and social activist. Atika's name is synonymous with grace, talent, and women empowerment. She is the chairperson of the Actors Collective Trust. From classic plays like Dasht, Sitara aur Mehrun-Nisa, Nijat, to the other recent ones like Humsafar, Kaisi Teri Khudgharzi, and so many more. Atika is undeniably one of the best things that has happened to Pakistan television. So we have Atika. Okay, now we have with us another creative genius, Haji Mushtaq from the recent hit serial award-winning director, screenwriter, producer, Ehtesham. The director behind blockbuster serials like Satya Tumhare, Udari, Asir-Zadi, Yuhi, Angan, and so many others. Also the director of memorable films like Superstar and Dammasta. His critically acclaimed short films were featured in many international film festivals. Theatre, film, TV, digital, whatever the medium, this gentleman thrives on storytelling. Ehtesham is an artist at living, and his work of art is his life. This is Ehtesham. Now, Asfar Rahman, a versatile actor, host, model, and my very charming friend, Asfar. He has been part of several super hit films like Chalawa, Punjab Nahi Jaungi, and TV shows like Door, Dugdugi, Ladies Park, Sitamgar, and many more. Asfar has been a major part of the cross-border collaborations. It always reminds me of that era. And that wasn't Purana era, that was just early 2000, just in case. Every performance looks fresh and impactful. These days, Asfar makes every morning pleasant with his warm and friendly persona in his show Morning Star on TV1. That's Asfar Rahman. अच्छा, मेरा पहला सवाल, आप सब लोगों ने एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा देखा है? I mean, I'm sure Asfar आपने भी कुछ हद तक तो देखा है. Definitely, मैंने सारे plays देखे हैं, starting from Uncle Urfi, Shehzori, वहाँ से मेरी journey. मैं तो I think early 2000 से अब तक को भी evolution ही बोलूँगी, 23 years. So yeah. So देखने चाहिए सबके. So tell us one thing that makes you really proud of our journey as a drama industry. Anyone wants to go first? मेरे ख्याल है बिल्कुल शुरू से 1964 में मेरा ख्याल 1964 नवंबर 1964 मैं इसके एक साल बाद, लेकिन हमारे साथ समीना अहमद मौजूद है
जिन्होंने बिल्कुल शुरू से टेलीविज़न जो है जब से आ रहा है उस वक्त से हम इनको देख रहे हैं, और बड़े मार्केटुलारा शोज़ भी जिसमें शोएब हाशमी, सच गप जिसमें शामिल। तो ये टेलीविज़न तो ऐसे शुरू हुआ, तो मैं चाहूँगा कि इसे हम आपस में करें। जी आप कुछ बताएं कि आपको जी सुनाए that one thing that makes you really proud of our journey as a drama industry. नहीं है, अभी प्राउड होना बाकी है। और वो प्राउड होना ये एक जर्नी है जो कि चल रही है और हम उसके साथ साथ चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। अगर हम इतने प्राउड हो जाएंगे तो फिर ये काम तो आगे नहीं चलेगा। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पहले एक ज़माने में एक तरह का काम जो टेलीविज़न स्टूडियो के अंदर होता था, 3 कैमरा सेट के ऊपर, वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि मैंने 1965 में जब काम शुरू किया था तो वो प्रोग्राम्स लाइव होते थे, उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है क्योंकि वो स्टेज की तरह से हम लोग रिहर्स करके और फिर टेलीवाइज होते थे और उसी वक्त वो दिखाए जाते थे। तो उसका एक और एक्सपीरियंस होता है कि आप में गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है, आपको अपना लाइफ किरदार वो सब कुछ याद करना है जैसे कि थिएटर में, मगर आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। जैसे हम ड्रामे की जब रिहर्सल करते हैं थिएटर की तो हम एक महीना 30 दिन 50 दिन इस तरह से रिहर्सल करते हैं, मगर वहाँ हमारा 1 हफ्ते का टाइम होता है और उसमें जितनी भी हम मेहनत कर सकें और जितना सीख सकें वो बस उसी के ऊपर ही गुजारा करना होता था। तो बीच में गड़बड़ भी होती थी, कभी कोई शॉट गलत हो गया कि हमने कहा, या मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा लाइन भूल गई थी तो मैं बिल्कुल एक ब्लैंक सी हो गई, तो उससे कैमरे पर कट किया और फिर मुझे बताया गया कि क्या है, और इस तरह के भी वाक़यात थे। वहाँ से तो जर्नी स्टार्ट होती है। फिर मैंने वेरी फॉर्चुनेट आई थिंक आई हैव सीन द लाइव all 3-4 decades, 5 decades of how television has progressed। और अब तो एक बहार है, बहुत सारे स्टेशंस हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्शंस हैं, बहुत कुछ हो रहा है उसमें। अभी और काम करना बहुत बाकी है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिस लेवल के ऊपर हम हैं, आई कैन से दैट आई एम रियली प्राउड। आई एजुकेशन पर्पस के लिए लेकर आए थे और इसको इडियट बॉक्स दिखाया। तो उसमें मोस्टली जो लोग जिनको हायर किया गया फॉर टेलीविज़न, एक विजुअल मीडियम है, वो रेडियो से थे क्योंकि वो रेडियो उनकी ट्रेनिंग हो चुकी थी, वो बोलने में बहुत अच्छे थे। तो वोकल जो एक्सप्रेशन है उनका वो तो मौजूद रहा। इसी तरह राइटर्स भी जो है वो रेडियो से इधर आए। तो विजुअल मीडियम के लिए कहानियाँ जब लिखेंगी तो हमारे जो टेलीविज़न के इब्तदाई दौर के जो स्क्रिप्ट्स थे वो रेडियो फॉर्मेट पे लिखे, उसमें स्क्रीन प्ले इतना नहीं इन्वॉल्व था। यानी विजुअल मीडियम में तो लेस इज मोर, आप बात करते हैं, दिखाते ज़्यादा है, यानी आप यू हैव टू शो, यू डोंट हैव टू टेल। तो यहाँ मैं सल्यूट करता हूँ उन लोगों को, उन आर्टिस्ट को, उन लोगों को जो रेडियो से आए और उन्होंने एक तरह की बुनियाद रखी विजुअल स्टोरी टेलिंग। उनमें ये तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने अपने जो वोकल एक्सप्रेशंस हैं उनको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस में तब्दील किया, जो कि एक बड़ा मुश्किल काम था। और इसी तरह से जो राइटर्स थे, जो कि शुरू में हम अभी भी अगर कोई पुराना प्ले उठाकर देखें तो आपको पाँच जगह डायलॉग मिलता है एक विजुअल मीडियम में कि अरे तुम आ गए, वो तो अब पता चल रहा है कि वो आ गया। वो रेडियो का डायलॉग होता था, या अरे मेरे कपड़ों पर चाय गिर गई, वो गिर गई है, वो तो विजुअल मीडियम के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता सबकी ट्रेनिंग भी होती है। और बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने, जैसे रेडियो से ज़ेड बुखारी साहब थे, असलम अजहर साहब थे, हमारे और रेडियो से भी बहुत सारे लोग हैं वो टेलीविज़न पे रेडियो से अशफाक अहमद साहब, एक और जमीला
वो पहली राइटर थी। इंतजार हुसैन साहब ने लिखा, वो कुन्नू भाई ने लिखा, बात समीना जी ने की है, वो स्पिरिट वो अभी भी हम वहाँ नहीं हैं जहाँ हमें होना चाहिए या जहाँ हमने जाना है। शायद हमें अभी सफ़र करना बहुत ज़रूरी है और हम सफ़र कर रहे हैं। एवोल्यूशन का एक प्रोसेस है, चल रहा है। कहानी हमें कहीं हमारी कहानी रुक गई है बीच में, हमें कहानी सुनाने नहीं दी गई। जब भी हम कोई कहानी सुनाने जाते हैं तो वो किसी न किसी चीज़ से लड़ जाती है, किसी ग्रुप से लड़ जाती है, किसी कोई एस्टैब्लिशमेंट से लड़ जाती है। हाँ, तो जो हम कहानियाँ बहुत सारी सुना सकते हैं वो हम नहीं सुना पाए। शायद हमको कहा गया कि इस तरह की कहानियाँ सुनाओ या इस तरह की कहानियाँ सुना सकते हो, इस तरह की नहीं सुना सकते। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो उर्दू ड्रामा प्रोड्यूस करता है। कहीं भी दुनिया में उर्दू ड्रामा नहीं बनता, सिटकॉम सोप सीरियल्स ये बनते हैं, लेकिन उर्दू ड्रामा सिर्फ हमारा मुल्क बनाता है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट, बिकॉज दुनिया में ड्रामा जो देखा जाता है वो पाकिस्तानी ड्रामा होता है। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग टू बी प्राउड ऑफ। आई रिमेंबर बचपन में मैं जब इन सबको समीना अहमद साहिबा को देखती थी टीवी पे, ये सब इंस्पिरेशनल रोल मॉडल्स हुआ करते थे जिनको देख देख के हम सब की ख्वाहिश रही कि हम इस प्रोडक्ट में आए। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी यूनिक। इट्स एन इंडिजिनस प्रोडक्ट, वी शुड ओन इट एंड वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। एब्सोल्युटली। असगर। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा जब सफ़र टेलीविज़न का जो शुरू हुआ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि बचपन में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो घर वालों का फोकस 2-3 चीज़ों पे होता है ना। अज़ान के वक्त टीवी बंद करते हो, या अगर अम्मी वगैरह को कभी उदास रोते हुए देखते थे तो नानी बीमार है तो वो उदास हो जाती थी या रो रही होती थी। तो मैं हर बच्चे के लिए अपने माँ बाप हीरोज़ होते हैं, वो अपने माँ बाप के इमोशन से इतना कुछ सीख रहे होते हैं। तो मैं देखता था कि जब कोई ड्रामा चलता था तो किसी सीन पे अम्मी रोती थी, तो मुझे लगता था कि ये क्या रिश्ता है इस टेलीविजन से, मेरी अम्मी क्यों रो रही है देख के। मैं कहता था मम्मी आप क्यों रो रही है, कि ये देखो बेचारी के साथ क्या हुआ। When I grew older, तो मुझे वही रिश्ता मैंने भी बनाना शुरू किया और करते 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 टू द पॉइंट एक ऐसा जिंदगी में आया कि जब मैं कॉलेज में प्लेस करता था, स्कूल में बिगिन हाउस में प्लेस करता था, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि क्यों ना मैं अपनी डिग्री करने से पहले टेलीविजन में एक्सटेंड करूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मैं समीना आपा एंड अतीका एहतशाम साहब जैसे लोगों के साथ एटलीस्ट मिल के एक तस्वीर बनवा सकूँ। That was my focus and that was my entire target to get into the industry initially, क्योंकि मैं देखता था कि सिर्फ घर वालों के पास, आपके रिश्तेदारों के पास वो पावर था रोने और हंसाने का। फिर मैंने देखा कि जो एक्टर्स हैं इनके पास इतनी बड़ी ताकत है कि वो आपके जज्बात को किस तरह उजागर कर सकते हैं, किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। और आई एम सो प्राउड टुडे, मैं लंदन में पिछले दिनों काफ़ी वक्त गुजारा हूँ आजकल। मैं देखता हूँ, आपको पता है इट माइट कम एज अ रिफ्रेशिंग न्यूज़ टू ऑल ऑफ यू, हमारा जो पाकिस्तानी ड्रामा है वो 10 से ज़ायद ज़बानों में डब होकर पूरी दुनिया में दिखाया जाता है। It deserves a big round of applause for Pakistani drama that's being shown all over the world, कितनी सारी ज़बानों में। और आपको पता है ये तभी होता है जब आप कोई क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप करें। Hello, it's working. Should we take a 2-minute Maghrib Azan break, right? से वो ये है कि अभी आपने इससे बात की, आपने उर्दू ड्रामे की बात की थी कि we are the only one which is great, of course, but in terms of views, our dramas are watched, I mean overall watched all over the globe. Even earlier in our 80s, Hasina Moin and Munna Bhai, we were still very popular across the border also. Even now they're over the globe thanks to digital. Yet we still fail to attract international production houses or platforms, even channels for that matter. So what do you think is lacking here? It can't be content, right? Because I believe, I mean, it could be content, but I think it can't be content. That's my point of view. Or have we failed to market ourselves properly? I mean, how come हमारा content Turkish की तरह इतना popular है, despite
doing. I mean, what do you think is the reason that we fail to attract international production houses, platforms, or international channels? आप बताएं इसका क्या reason हो सकता है? Yes, please. I think this question's answer should be distribution. Basically, Acha. when we are clear, or the investor is clear, where distribution options will open up, then people will invest more money. Right now, the capital is coming from our local networks and going back into the local trade. Exactly. But as soon as investors see that it's, the capital will come from international platforms in foreign currency, so, the way I like to answer this is it's very important for us to take ourselves, the talent and the content out of Pakistan production-wise and distribution-wise, because we need that foreign currency income coming in as well. With other countries, it also really matters. Like back in the day, if you look at the 80s and the 70s, तो लॉलीवुड की बेइंतहा कोलैबोरेशन होती थी श्रीलंका से, तुर्की से, और वो कोलैबोरेशन उसी वक्त होती थी कि जब आपकी बहुत ज़्यादा उनके साथ ताल्लुकात बेहतर थे और आपकी इकोनॉमी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी. एंड व्हेन यू कोलैबोरेट विद डिफरेंट कंट्रीज, तो ऑफ कोर्स हमारी फिल्में इतनी वहाँ पे लगती भी थी. मुख्तलिफ ममालिक में, चाइना में बहुत अरसे तक हमारी फिल्में लगती हैं. चाइना में अभी भी लगती है. लेकिन हो रही है, टर्की के साथ भी हो रही है, बट उस लेवल पे नहीं. मतलब हमारा इतना कंटेंट है, मतलब वो वाला, what I mean, Atika just said कि distribution is the main problem here. मेरे ख्याल में वजह उसकी है कि कोई एक चीज जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि वो अकेली तरक्की कर सकती है. साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को साथ साथ आगे बढ़ना होता है. अनफॉर्चुनेटली हम पिछला 75 सालों से, मैंने कहा ना कि हम दायरों में ही घूम रहे हैं, तो हमने वो देखा नहीं. सिर्फ हम अपनी तारीफ करते हैं और हम लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं. हमने ना दुनिया की तरफ देखा, ना हमने दुनिया को अपना आप दिखाया, बल्कि हमारी जो चीज़ पोर्ट्रे होती है पूरी दुनिया में वो एक अच्छा इमेज नहीं है, अनफॉर्चुनेटली. बिल्कुल, that's the truth. अब होता ये है कि जब आप अकेले हो जाते हैं, तन्हा खड़े होते हैं, तो फिर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या हम इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो ये सारी चीज़ें हैं. फिर दूसरी बात ये कि एक जंग की कैफियत रही है पिछले 30-35 सालों से, 40 सालों में. तो मैं कहूँगा कि कोल्ड वॉर जब से रशिया में चल रही थी और अफगानिस्तान आ गई थी, और अफगानिस्तान से जब लोग यहाँ हिजरत कर रहे थे, आप देखें कि वो 35, 40, 50 साल जो गुजरे हैं वो क्या गुजरे हैं. आज भी हम वही 35 साल पहले के दौर में खड़े हुए हैं, जहाँ आज हम जिनको हमने वेलकम किया, जिनके नाम पे हमने पैसे खर्च किए, आगे हमारे भाई हैं, अब उनको हम वापस अपने मुल्क जाने का कह रहे हैं और उनको बादाब्ता दरबदर कर रहे हैं. एक तरीके से देखा जाए तो कोई हमने उसके लिए काम नहीं किया कि उनको कोई एक पॉलिसी तो बने एटलीस्ट, कि आप इंसानी लेवल पर जब आप जाते हैं तो आप तो उनको बताएं तो सही कि भाई आपने यहाँ से दूर कर जाना है. आप उनको स्कूलों से छोटे छोटे बच्चों को हम उठाकर बाहर भेजें. तो ये हमारे पास अभी बहुत सारा काम होना बाकी है शायद, और शायद इसी वजह से इकोनॉमी की हुई हालत है. हम किसी भी शोबे में देख लें, एजुकेशन में, हम फाइनेंस का शोबा देखते हैं, हम R&D रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करें तो हम बस रिसर्च की जरूरत है. हमने किसी भी अपनी चीज़ के ऊपर जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ अभी तक हमने कोई ऐसी रिसर्च की मेरा आपसे सवाल है वो ये कि earlier back in the days हम टीवी की बात करें, of course 60s है, but 70s 80s even for that matter early 90s का जो टेलीविजन था उसमें violence कम होता था, domestic abuse होती थी but बहुत कम. I don't remember any plays actually. I do remember some physical violent plays, एक वारिस था, there was another one. So but compared to now that we see a lot of domestic violence, and otherwise if the story is based on a man then physical violence is involved, it's another kind of violence, but domestic abuse तो होता ही है. So what do you think, what is this is it the rating trend that if you don't show some kind of action in reform कि नहीं आएगी क्या? What is your point of view on this, since you've experienced that era also and alhamdulillah you're part of this era too? So what do you think is the reason behind this violence, which is a never ending thing right now? एक बात तो ये है कि हमारा ओवरऑल कल्चर बहुत वायलेंट का हो गया.
एक बात तो ये कि हमारा हम इस वक्त अगर हम देखें तो हमारा कल्चर बहुत वायलेंस ओरिएंटेड है, मगर ये धीरे धीरे से हुआ है और हमारी पॉलिसीज़ क्या रही हैं, सोशल सिचुएशंस क्या रही हैं, उसके मुताबिक हम कर सकते हैं। मगर मेरा ख्याल है कि जो जो सबसे बड़ा इसके अंदर प्रॉब्लम रहा है वो टेकिंग एन ईजी वे आउट फॉर द राइटर्स भी है। ये एक आसान होता है कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट जो ड्रामे का एक बुनियादी चीज़ है उसको आप वायलेंस के ऊपर बेस करें कि उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने उसको मारा, ये कॉन्फ्लिक्ट हमारा हो गया और हमने वहाँ से कहानी आगे ले जानी शुरू की। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट को ज़रा थोड़ा सा सेंसिटिवली आप देखें और उसको कॉन्फ्लिक्ट कैन बी विद सेल्फ आल्सो, विद सोसाइटी आल्सो, विद इन योर रिलेशंस आल्सो, बट इट डजंट हैव टू बी फिजिकल एंड वर्बल वायलेंस। कहते हैं ड्रामे का पहले हफ्ते में 5 ड्रामे आते थे मुख्तलिफ स्टेशन के। लाहौर स्टेशन का एक दिन एक ड्रामा आएगा, कराची स्टेशन का एक दिन एक ड्रामा आएगा, क्वेटा स्टेशन का, पेशावर स्टेशन का, इस्लामाबाद स्टेशन का, जिसमें गेस्ट हाउस, तन्हाइयाँ, इस तरह के हम लोग बेहतरीन प्लेस देखते थे। रोज़ एक ड्रामा आता था। आज शाम को 7 बजे से रात के 10 बजे तक बेतहाशा ड्रामे आते हैं, और कोई एक ड्रामा जो किसी वीकेंड पे 8 बजे आएगा वो एक ऐसा ड्रामा होगा जो आपके जहन पे एक छाप छोड़ जाएगा। जैसे सर का बेहतरीन ड्रामा है काबली पुलाव, जो कि मुख्तलिफ कहानी भी है। हमारा बहुत सारा ड्रामा जो है मेरे ख्याल से, इट्स अ पर्सनल ऑब्जर्वेशन, बॉलीवुड की साय में बहुत रहता है। एक फिल्म ऐसी आएगी जिसके अंदर एक अग्रेसिव बदतमीज हीरो होगा, तो उस तरह के 5 ड्रामे आप हर सहमाई में देखेंगे आते हुए, जो कि एक फैक्ट है। आप देखें तो मेरे ख्याल से टेलीविजन ओनर्स को भी, और या जो कंटेंट राइटर्स हैं, बहुत कॉन्शियसली उनको ये एक स्टेप लेना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि 7 बजे का जो ड्रामा है, अभी 7 बजे का तो ड्रामा हम बिल्कुल मासेस को टारगेट करते हैं, 8 बजे हम क्लासेस को टारगेट करते हैं। आपने खुद एक डिवीजन क्रिएट कर दिया अपने बीच में। And here it's not only the writer's responsibility, it is also the channel's responsibility. If the channels are not going to accept drama which is sensitive, which is thought-provoking, which offers some solutions, and they are going to resort to cheap tactics of ratings, कि हमें सिर्फ रेटिंग चाहिए, मार्केटिंग वाले कह रहे हैं कि ये आसानी से बिक जाता है, तो वो भी मार्केटिंग वालों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो कर ले मेहनत। Also the audience. I think जिस दिन हमारी ऑडियंस इस तरह की चीज़ें देखना बंद कर देगी, जब रेटिंग नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली चैनल अपना मॉडल चेंज जरूर करेंगे। But of course, we do need that awareness. I absolutely agree. The writer, the channel, everything, they do need to take that step. And I think उनको immune कराने की ज़रूरत भी है, because हम जो आदत डलवाएंगे लोगों को वही देखने की आदत होगी। Samina, but do you agree with this or not? I think you didn't really. Samina, needs to कुछ एग्री नहीं किया, आपके क्या चल रहा है? I would like to hear that out. ऐसा ना हो कि हम ऑडियंस के इंतजार में बैठे रहे और जब उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया देखना और वो दूसरे चैनल्स की तरफ, दुनिया के और चैनल्स की तरफ चले गए, तो ये सारी इंडस्ट्री खत्म ही ना हो जाए। एक तो बात ये भी है कि टेलीविजन का जितना भी काम है ये आर्टिस्ट्स का काम है, हमने इकोनॉमिस्ट के हाथ में दिया हुआ है। जो है उसकी बड़ी ज़रूरत है कि कहाँ क्या मसला है। सबसे पहली बात तो ये कि दुनिया बहुत तब्दील हो गई है। पहले हर घर में एक टेलीविजन और सारे घर वाले बैठकर एक साथ देखा करते थे। उसके बाद एक घर में शायद 2 से 3 टेलीविजन और फिर 4 टेलीविजन, और उसके बाद फिर हर आदमी की जेब में एक टेलीविजन। तो ये एक दुनिया में बड़ी तब्दीली आई है। तो अब हर आदमी या हर बच्चा या हर शख्स या हर खातून अपने वक्त पे, अपने हिसाब से, अपनी जगह पे जहाँ पे भी मौजूद है, वो वहाँ कोई भी चीज़ देख सकते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि टेलीविज़न जो कि एक घर में एक उसकी भी हैसियत एक फ़र्द की सी है, और जिस मकसद के लिए लाए थे वो मकसद भी मेरे ख्याल है आज तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हम ड्रामे के ज़रिए ही ऐसी हमारी जो आवाम थी या हमारे लोग थे जहाँ लिटरेसी लेवल बहुत कम था, वहाँ हम उन्हें कहानियों के ज़रिए यह चीज़ समझाया करते थे या बात किया करते थे। How many of you know, but Tika ji has been just, has some collaboration with Turkey. She's doing a project there, and we were very excited when we found out, because of course we want to see our stars internationally, making the name for themselves, which they actually already do, but of course more the merrier.
So this is something I want to ask Atika, that can you tell us about this collaboration you're doing with Turkey, what it's all about, what are you playing, something you'd like to know, and something just, it sounds very exciting. So I think the world is turning towards these sort of joint ventures because अब ज़माना बदल गया है और आपकी borders and boundaries बदल गई हैं, because obviously आप सब कुछ दे सकते हैं अपने Netflixes पे और Amazon Primes पे. I'm doing a role of a mother of a boy who is playing a college hero in Turkey, and the story is about a Pakistani family. Mine is a very basic sort of guest appearance initially, but main चीज टर्की में उन्होंने ये सोचा कि हम मुख्तलिफ कल्चर्स के बच्चों को एक साथ एक यूनिवर्सिटी सेटिंग में डाल के तो हम एक मल्टी कल्चर्स दिखाएंगे. And of course working with them, seeing the scale, उनका scale बहुत different है, उनके budgets बहुत different होते हैं, उनकी social responsibility एक और level पे है. वो सब देखते हुए आपका दिल चाहता है कि आप भी यहाँ पे कुछ ऐसे scale पे काम करें. But you know, Nina, what I'd like to talk about here is that I think we're still very confused as content creators or what drama means to us, because basically this panel is about drama then and now. जब जैसे एहतशाम साहब ने कहा कि जब टीवी शुरू हुआ था तो रेडियो से टीवी की ट्रांजिशन हुई थी, तो हमारी स्क्रिप्ट्स भी जो थी वो रेडियो वाले लिखते थे वो टीवी. अभी भी जब स्क्रिप्ट आती है तो मैं हमेशा, मेरा एक सवाल होता है भाई इतना डायलॉग क्यों है इसमें, मुझ जैसी जालिम सास नजर आती है. It's on social media, you know, like socially driven. जालिम और खूबसूरत सास. आपको वो entertainment नहीं नजर आता. So देखिए, especially एक ऐसा मुल्क जहाँ पे इतना डिस्ट्रेस चलता रहता है, दुनिया में इतना डिस्ट्रेस है. अभी look at what's happening in Palestine. तो you need to give people relief. कोविड के टाइम पे हमारे यही एक कॉन्वर्सेशन होती थी कि हम ऐसी चीज बनाएं जो लोग हंस सकें, लव स्टोरी दिखाएं, कॉमेडी दिखाएं, कुछ दिखाएं, ताकि मुझे एक मेंटल डिप्रेशन हो गया लोगों में, वो हम तोड़ सकें. तो we still don't give people entertainment. We're still talking to them and preaching to them and telling them how they should be or not be. अगर मैं एक जालिम सास का रोल प्ले करती हूँ तो मैं दिखा रही हूँ कि एक ऐसी औरत एग्जिस्ट करती नहीं होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में. ये है कि अभी हर चैनल ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है, तो वहाँ से वो डायरेक्टली एक इनकम कमा रहे हैं काफ़ी वॉल्यूम में. तो why I think the first option will be broadcast, then the YouTube, and then any OTT, because they would much rather earn the capital directly. अस्सलाम वालेकुम. One more question. जी. Yes, please. Short question है. Yes, please. अस्सलाम वालेकुम अतीका मैम. I'm here. सबसे पहले तो बीबी बाजी, काबली पुलाव, शहजादी एंड आखिर क्यों, आप चारों के सीरियल्स इज मार्वेलस. अच्छा, मेरा सवाल सिंपल शॉर्ट है कि इंटरनेशनल मीडिया का जो है व्यूअरशिप बाइफरकेट होती है, मेंशन होती है, लाइक PG 12, 14, 16, 18. पाकिस्तान में अभी तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आया है, जबकि अभी बहुत सारे ऐसे चैनल जैसे ग्रीन एंटरटेनमेंट में जिंदो ड्रामा आया, आई थिंक वो 18+ कंटेंट, लेकिन वो सब देख रहे हैं. तो इसके बारे में कुछ बेसिकली कुछ साल पहले एज UPA प्रोड्यूसर एसोसिएशन हमने लिखा था टू PT एंड पेमरा, और ये हमने इम्प्लीमेंट करवाया था जो कुछ अरसे तक रहा स्क्रीन पे कि भाई यू नो पेरेंटल गाइडेंस है, एडवाइजरी है, नहीं है, और फिर सडनली कुछ महीनों बाद गायब हो गया. There should definitely be a rating system, because हमारे साथ क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो न्यूज़, जब दोपहर का भी न्यूज़ चलता है तो वो वायलेंस देख रहे होते हैं. कोई अगर कंटेंट है जिसमें वायलेंस है या कोई अग्रेसिव कोई बिहेवियर पैटर्न्स है, there should definitely be parental guidance advisories on content. And हमने ये किया था कि हमने सिर्फ उस पर एडवाइजरी भी नहीं लगवाई थी, हमने टाइमिंग चेंज करवाया था कि अगर कोई चीज़ वायलेंट है तो आफ्टर द चिल्ड्रन गो टू बेड, आफ्टर आवर्स चलना चाहिए, नॉट ड्यूरिंग प्राइम टाइम. तो यस, एब्सोल्युटली इट शुड बी री-इम्प्लीमेंटेड फॉर श्योर. Yes, please. अस्सलाम वालेकुम. ये क्यों लिखवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि ये बार अच्छा देन दूसरा होता है कि सब जगह होता है यहाँ उसने ये बोला तो उसने साथ में उसको चपेट मारा. ये क्यों मार रही है चपेट? क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? व्हाई कांट दे हैव अ डायलॉग? I have a feeling that the men involved in drama creation have some form of frustration going on in their own front, because we don't know where this content is coming from. I think I would like to answer. बिल्कुल ठीक आप बताएं. अगर आप मुझे बताएं कि हमारे and the translator is Inam Nadi. क्या हमारी इतनी प्रॉब्लम है and teaching controversy with national zero level की चीजें आ जाती हैं. मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को चांस देना चाहिए.
राइटर्स में, डायरेक्टर्स में, और जितने भी स्टैब्लिश लोग हैं उनको अपने असिस्टेंट्स तैयार करने चाहिए फील्ड के लिए, क्योंकि शो बिजनेस एक चलती हुई फील्ड है। और आपको पता है हम लोग फ्रंट लाइनर, जिस तरह कोविड का टाइम था सिर्फ डॉक्टर्स काम कर रहे थे और एक्टर्स काम कर रहे थे, हम लोगों ने बिल्कुल भी कोरोना में भी ब्रेक नहीं दिया होगा आप लोगों के लिए। तो मैं कहता हूँ से ज़्यादा लोगों को चांस दो, वो इंडस्ट्री इस तरह चलती रहे। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर इंडस्ट्री तो भी हमने सारी बातें तो कर ली और क्या। मैं मेरा क्वेश्चन है कि हमारे ज़्यादातर इंडस्ट्री में चांस मिलना चाहिए इंडस्ट्री को मुझे आगे बेहतर बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम अपने सीनियर से सीखते हैं और सीनियर को देखते हैं, बट अब ऐसा लगता है कि लोगों को भी चांस देना चाहिए। तो क्या बहुत सारे नए, मैं बिल्कुल नहीं मानती ये बात कि नए लोगों को चांस नहीं। इस वक्त बहुत सारे नए लोग काम कर रहे हैं, किसी को मतलब मैं पहचानती भी नहीं, मगर बहुत सारे नए लड़के लड़कियाँ हैं जो कि काम कर रहे हैं। बहुत सारे नए डायरेक्टर जो करके असिस्टेंट थे या वैसे सीखते थैंक यू सर, थैंक यू। तो जनाब मोहतरम, आज बैम टेलीविजन आपको लेकर आया अदब फेस्टिवल में, और अदब फेस्टिवल के जितने सेशंस हम कवर कर सकते थे आप लोगों के लिए हमने कवर किए। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इसी तरह के एक्सक्लूसिव सेशंस के लिए जो है मेरे साथ रहिए, और डोंट फॉरगेट टू वॉच बैम।